and I have gone through his book also, and I know he will be able to guide us and uh, uh, come up with his clinical experiences to how to uh, reach to the remedy, especially in today's topic, which is chikungunya he has selected. So, with this, I wish again Punjab IHP for this new venture and all the best to Dr. H.S. Mathadu. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your kind words and guiding words. Yeah. Now, I would like to request Dr. Pramod, sir, to please share his vision with us. Dr. Pramod, sir, Yes, currently thank you. serving as. Am I audible? Yes, sir. Uh, Respected office bearer, eminent speaker Dr. H.S. Mutharu, Dr. Ridhima, senior member of this IIP, esteemed colleague. First of all, I would like to give my respectful grateful to all of you. It is a matter of honor to welcome this online meeting hosted by the Indian Institute of Homeopathy Physician Punjab. As a president, I give my best wishes. IIPC is a long professional unity, academic enrichment, and ethical commitment with the homeopathic community. Gathering of this type of the online meeting give the collective strength and our dedication to serve the society through the homeopathy. This types of the occasion provides us opportunity to the deliberate the professional matter and resolve to uphold the highest standard to conduct these types of the learning. On the behalf of the President, I express my sincere appreciation to organize these types of the online meeting and all the participants of this meeting. I first of all welcome especially Dr. Sofat, Dr. Ridhima, and today's speaker, Dr. H.S. Matharu. May today's meeting will be marked a meaningful deliberation, mutual respect, and constructive outcome that further strengthen our institution and our professions. With these words, I once again welcome to all and wish the proceeding of the every success. Thank you. Thank you so much, sir, for your inspiring Thank you. words and blessings. And without much ado, let's welcome our today's speaker, Dr. H.S. Matharu, sir, with his today's topic, that is Introduction to Mind Technique, the art of quick prescription in cases of chikungunya and dengue. The whole stage is yours now, sir. Please welcome H.S. Matharu, sir. Namaskar, Doctor. Hey, namaskar, sir. First of all, I will congratulate IHP Punjab unit, all the dignitaries, all the office bearers, Dr. Pramod, the President IHP Punjab unit, Dr. Rajit Sofat, the Vice President North Zone Punjab, North Zone IHP, and Dr. Pradeep, General Secretary IHP Punjab, and Dr. Ridhima ji, Joint Secretary IHP Punjab. So this is the very good step you have chosen, and this indicates your desire to propagate homeopathy to the masses. You have called me to share my thoughts and share my experience with you. So I feel good. So
I am practicing on mind technique given by Dr. M.L. Sehgal Sahab since 90. Before, I was a classical homeopath, being a student of Dr. Castro Sahab. After that, since 90, I joined Dr. M.L. Sehgal sir by showing him live cases and taking from Punjab to Delhi. With his grace and guidance, the true master, Dr. M.L. Sehgal sir, I salute him. He gives a way, a method that is a very perfect in curing acutes and terminal cases. Since 90, I am using this system and getting great success in acutes as well as in chronic cases, especially terminal cases. So, मैं आज मुझे बोला गया कि आई हैव टू चूज हिंदी लैंग्वेज बिकॉज many delegates are here, they like to speak in Hindi. It's a common language. So I will start the introductory some part of our great master, Dr. Emil Segal sir. The sickness which is the result is the process of degeneration, degenerative process. Prescribing on the common, most ordinary and usual symptom of the expressions of the patient results in proper cure by provoking of the discharges as expulsions. Accumulated discharges come out by leaving healthy fitness behind and particular healing in a particular organ of the body. And there is some different in mind method, Sehgal method. We don't care for the grade of the remedies, whether it is first grade and second grade or third grade. We don't care for that. But it should be first grade in the patient. When we see the patient, it should cover whole of the personality of the patient. No doubt, maybe third grade in the repertory, as for example, fear extravagancy of opium is in third grade. But if a patient of the opium comes to us, if the patient is of opium and the fear extravagancy, the single rubric may cover the whole personality of the patient, then opium can cure the patient without bothering about the grades and even without bothering about thermal aggravation, amnurulation. Whenever there is a striking mental state of the patient, we can ignore physical also. So, according to Dr. Sehgal sir, present, predominating, and persisting state is the first tool to prescribe, even in acute, in chronic cases. Though
After the prescribing of the medicine, the test of our prescription is first well-being sensation felt by the patient should be there. In every case, well-being is the first judgment and the first signal of the mind, because any feeling, any signal of the mind cannot come without the good feeling in a particular organ. Say a patient comes here, a pain in finger joint. We can judge it from two types. A patient will tell you, I am feeling some better. If you directly question the patient, okay, how your pain in your finger, sometimes patient not able to express his expression, how far I am feeling reduction in the pain in a particular point. But if there is a reduction in the pain, maybe very minor, it will reflect on the mental state. So patient can, therefore, we have taken the well-being sensation because any reduction in the disturbance in a particular organ will lead to expression in the mental state. As for example, a patient came to Dr. Sehgal sir, a patient saying, sir, I am having earache, pain in my ear. From the morning, I was having this, and till evening, I don't care for that. But now, night is coming. I am thinking I will be disturbing to my family. And so, therefore, I should not disturb my family. So, I want to remove my suffering. Kindly give me some treatment. This is a very common language and usual symptoms. Generally, patient talk with us. But before Dr. Sehgal, we didn't recognize this type of signals of the patient because they are very, very common. We were trained in particular and PQRS on the physical level, but this is the PQRS of the mental level, mind, mental status of the patient. So, Dr. Sir gave Bractacarb to the patient, and tomorrow morning patient came with much reduction in pain, followed by simple minor discharge from the ear. So this was the first case given by Sir to guide us how a Sehgal system works, how we should try to take the symptoms of the patient into consideration. The rubrics were frivolous, careful, and exactly others about, according to Kent Repertory at that time. Many other medicines also introduced nowadays, but at that time, the only Bractacarb was medicine. So, after giving the medicine to the patient, as well as we are thinking that the first sign should be well-being sensation followed by expulsion, sorry. The sir has guided us. The expulsion will take place
in odd number of days, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, as long. Whenever you find that patient will call you, usually call you on the second day, because on the first day it is some less. In the second day, it's on the peak. If you can say the expression is covering only first step, the third, then on the third day, he will feel some relief automatically. SI, according to this system, we should be the perfect judge of the signals of the mind and expressions of the patient in every case, in every disease. We are not concerned with the disease at all. We are concerned with the patient, especially mental state of the patient when he comes to you for treatment. Because all these symptoms which we are considering according to mind technique, according to Dr. Sehgal's system, are only usual, casually, and ordinary symptoms. So therefore, we have to be careful not to ignore these common symptoms. How we can recognize the common symptom? We have to be you can say, proper judgment of the expressions of the patient. In the repertory, we have lot of expressions. Those expressions will lead to selection of the proper rubric, and the selection of the proper rubric lead to the proper selection of the remedy, and proper selection of the remedy will lead to cure the patient. This is the phenomena. So, how patients say, what is the motive of the patient using the language while narrating the symptoms? How he says, why he says, when he says. All these things are given importance during case taking. While case taking according to mind symptom, according to mind method, let the patient feel easy, not to be interrupted by the, you can say, attendants. Make the patient comfortable so he can express him as he wants. Try to sit the patient alone with you. You can request his attendants to wait for some time and let the patient alone. Because mental symptoms, especially the disturbances of the mind, cannot be explained in the presence of others. But patient will not say you, I want to talk you in alone. It's our duty to give the space to the patient. This is my experience that your practice will change when patient will be alone with you. So understanding the signal of the patient is the key to the case taking. So मैं जे डॉक्टर सहगल साहब की शिक्षा को जितना भी मैं ग्रहण कर पाया हूं मैंने आपके साथ शेयर किया। अब हम ये देखेंगे कि कैसे पेशेंट की दशा को समझ के हम पेशेंट की एक्चुअल दिक्कत को कैसा समझेंगे, कैसा फील करेंगे। सिंपली पेशेंट हमारे पास आता है,
सर मुझे जल्दी से जल्दी ठीक कर दीजिए। तो अगर पेशेंट यहाँ पे पॉज लगाता है तो हम पूछते हैं जी क्या बात है, ऐसा आप क्यों महसूस कर रहे हो? अगर पेशेंट कहता है कि सर ऐसा ही बस, मैंने सोचा जल्दी जल्दी दवाई लेके जाऊं तो अपने घर चला जाऊं, और तो कुछ नहीं है, और से लाफिंगली, सर ऐसे ही कुछ नहीं है, बस जल्दी दवाई दे दीजिए, ठीक कर दीजिए। दिस इज द कैरेटिजाइट फास्ट लाफिंग स्पीकिंग वेल। कभी कभी हमारे कुलीग्स ऐसा फील करते हैं कि शायद एक दो सिम्टम के ऊपर प्रेस्क्राइब करना सही नहीं है। नहीं, मेरा मानना ये है ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे मास्टर्स ने अगर लाफिंग स्पीकिंग बैन में बेलाडोना अकेली को लिखा है तो वी कैन प्रिस्क्राइब। उन्होंने ऐसे ही थोड़ी लिख दिया, ये उन्होंने इतना उसको महसूस किया, गहराई में समझा, तभी ये सिम्टम के लिए एक मेडिसिन आई। अगर एक रूब्रिक जो पूरी पर्सनैलिटी को कवर कर रहा है, देन यू कैन प्रिस्क्राइब द सिंगल सिम्टम ओनली। जैसा फियर एक्सट्रावेगेंसी पहले ही मैंने सर के हिसाब से डिस्कस किया है, तो फियर एक्सट्रावेगेंसी अगर आपकी पूरी पेशेंट की पूरी पर्सनैलिटी को कवर कर रहा है, देन नो नो प्रॉब्लम, वी कैन प्रिस्क्राइब। हाँ, अगर हमें इसके साथ सपोर्टिंग और रूब्रिक मिलते हैं, then we can select up to maximum up to 3 rubrics, even more than that. But prescribing on a single rubric, it's not wrong. So for this stage, belladonna is the medicine. Cardiac fast and laughing speaking well. एक चिकनगुनिया पेशेंट की मैं आपके साथ बात करता हूँ। बहुत देर पहले इसको एक पेशेंट बच्चे को लेकर आए मेरे पास में, बोले जी इसको हम कुछ भी खाने को देते हैं, ये बोलता है नहीं 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 नहीं, नहीं खाऊंगा, जो इसको बोलो वो ही नहीं, जो इसको बोलो नहीं, बस पड़ा रहता है। अब कहता है कि मुझे कुछ फोन पे करना है, कोई देखना है, कुछ इसके अंदर देखना है, कोई मैंने पढ़ाई की चीज देखनी है, वो लेटे लेटे सारा कुछ करता रहता है। अगर हम क्लासिकल पॉइंट के हिसाब से देखते हैं, जब मैं 90 से पहले प्रैक्टिस करता था, तो ये चीज हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस की बात नहीं थी, हम इसको ऐसे ही लेते थे, नजरअंदाज करते थे इन बातों को। लेकिन अब आफ्टर फॉलोइंग डॉक्टर सहगल स्कूल एंड डॉक्टर सहगल सर, वी आर एबल टू जज दो सिम्टम्स which we were taking the symptoms casually. So this is the symptom कि बच्चा जिद तो करता ही है जी। अगर पहले तो ऐसे ही कहते थे लोग, बट नो, अब हमने रेपर्टरी को खोलना सीख लिया, स्पेशली माइंड सेक्शन को, जो पहले इग्नोर किया जाता था। उसमें लिखा है ये रूब्रिक, एक ही लाइन में बताई गई बात को पेशेंट की पूरी पर्सनैलिटी को क्लियर कर दिया। वो कैसे? जैसे पेशेंट ने बोला, बच्चे के पेरेंट्स बोल रहे थे कि सर इतना जिद्दी है, कुछ भी इसको कहो, हर चीज इसको उल्टी लगती है, मुझे पूरा उसको ऑब्जेक्ट करता है, रिएक्ट करता है, नो। तो ये है ऑब्स्टिनेट furious objection against whatever was proposed he had the but remain in desire to, बस लेटा रहता है, मोबाइल में कुछ कुछ ऐसे ऐसे चेक करता रहता है, और कोई सवाल करता है, कोई चैट करता है। वो ये है एक्टिविटी, डिजायर्स एक्टिविटी, क्रिएटिव, जो स्कूल का लेसन दिए होते हैं, बस उनको चेक करके उनका हल निकालता रहता है। तो अर्जेंटिन नाइट्रिकम था मेडिसिन फॉर दिस। आई गिव अर्जेंटिन नाइट्रिकम 30 to the patient
और जनरली मैं क्या करता हूँ, पेशेंट को 15 मिनट के लिए अपने कैबिन में के बाहर वेटिंग रूम में बिठा के पूछता हूँ। तो 15 मिनट के बाद उस पेशेंट को जब अंदर बुलाया गया, तो फर्स्ट जजमेंट क्या है, पेशेंट का चेहरा जो ड्यूरिंग जो उसकी तकलीफ है उसके दौरान पहले जब आया था, उसके बाद उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगी। आपको कंफर्म हो जाएगा, पूछे के बिना ही कंफर्म हो जाएगा कि पेशेंट इज बेटर। तो मैंने पेशेंट का हाल जानने के लिए उसकी मदर को पूछा कि हाउ ही फील्स। उसकी माता ने बताया कि अब मुझे उतनी बेचैनी नहीं कर रहा था। तो ये पहले तो ऐसे कसा कसा बैठा था, अब ये बड़ा रिलैक्स होके बैठा हुआ है। तो हमने माइंड को ही ट्रीट किया। ये नहीं है कि हमने ओनली माइंड को ही ट्रीट किया, हमने बॉडी को भी ठीक किया, बिकॉज माइंड एंड बॉडी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ईच अदर। मन और तन एक ही है। अगर मन सुखी है तो तन सुखी है, अगर तन सुखी है तो मन सुखी है। तो पेशेंट को मैंने पूछा कि बेटा कैसा लग रहा है आपको। हल्का सा सिर हिलाया, उसने बोला कि सर अच्छा लग रहा है। तो अगले 15 मिनट के बाद में मैंने फिर पेशेंट को बुलाया और फिर वो आके आराम से बैठ के बोला। वो पहले मेरे को उसने बताया नहीं था, और पेशेंट ने बताया कि सर मेरा हेडेक ठीक हो गया है, पहले सिर दर्द होता था मेरे। तो उसकी माँ ने एक और चीज ऐड की, सर मैं जब बाहर बैठी थी, मेरे पास किन्नू था, तो मैंने किन्नू छील के उसकी एक फाड़ी उसको खाने को दी, तो इसने खा ली। तो पहले तो ये बोलता नहीं 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 नहीं, ये है क्यूरियस ऑब्जेक्शन। सो हम इन छोटी छोटी बातों को जान लेंगे। अब इन्हीं बातों को शेयर करने से के लिए मैं आपके साथ आया हूँ। मैं बेसिकली टीचर नहीं हूँ, मुझे पढ़ाना नहीं आता, बट सिंपली बताना ही आता है कि मैं अपनी प्रैक्टिस में क्या करता हूँ। सो ऐसा ही नेक्स्ट केस मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो जो भी क्वेश्चन होगा, कुछ भी आपने बात करनी होगी, तो जब हम अपनी बात पूरी कर चुकूंगा मैं, मेरे से आप बात कर सकते हैं। तो ये एक पेशेंट और मेरे पास लेकर आए। ये था एक औरत लड़की आई मेरे पास, अप्रोक्सीमेट 35 ईयर्स के करीब होगी। तो वो पहला पेशेंट जो उसका फॉलोअप मैं बताना भूल गया, वो आफ्टर थर्ड डे जब मेरे पास लेकर आया, पेशेंट को कोई पेन नहीं था और ही वॉज ईटिंग वेरी वेल एंड स्लीपिंग वेरी वेल। तो क्यूर्ड विद ओनली सिंगल डोज ऑफ आर्थेटिन नाइट्रिक। देन एक पेशेंट ये लड़की को लेकर आए मेरे पास, तो उसको मैंने बोला कि बेटा बैठिए आप। वो अपने हस्बैंड की तरफ ऐसे देखने लगी। हमें कीन ऑब्जर्वर होना पड़ेगा। ये जो वो देख रही थी बिना बोले, तो मैंने समझा कि देयर इज समथिंग शी वांट अवॉइड द कंपनी ऑफ हर हस्बैंड। बट उन्होंने कुछ बोला नहीं। मैंने इसी बात को देख के उसके हस्बैंड को बोला कि आप 2 मिनट के लिए बाहर बैठिए, जरा मैं इससे बात कर लूं, क्योंकि ये बताने में हेजिटेट कर रही है। तो वो बाहर गए। जब डोर क्लोज हो गया तो पेशेंट ने रोना शुरू कर दिया। सर बस मेरे को लगता है मैं कुछ कर ही लूं, क्या कर लूं बेटा, बस आपको पता ही है सर, ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को खत्म कर लूं। मेरा दुनिया में कोई है ही नहीं, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई लगता ही नहीं है।
मेरे को कौन पूछता है? ऐसी ये जिंदगी भी क्या जिंदगी है, इससे अच्छा तो मैं अपने आप को खत्म कर लूं। सो इतना सा एक्सप्रेशन पेशेंट का मैंने उनको मेडिसिन दी और गुड़िया को बाहर बैठने के लिए बोला कि जस्ट आफ्टर 15 मिनट्स यू कम टू मी। तो पेशेंट को अंदर बुलाया और उनसे पूछा कि क्या हाल है आपका। पेशेंट ने बताया कि सर, जो मेरे को नाउजिया हो रहा था, उसने मुझे नहीं बताया कि मेरे को नाउजिया हो रहा है, बस उसने यही बात की और मैंने इसको मेडिसिन दी। वो बाहर नहीं बुलाया। उसको नाउजिया बहुत ही हो रहा था और लिप्स के ऊपर इतनी ड्राइनेस थी। वो दैट वाज द ऑब्जेक्टिव सिम्टम। मैंने उसको ऑब्जर्व किया था, बट पेशेंट ने मुझे बताया नहीं था। शायद वो आगे बताती, मैंने उसको मेडिसिन दे के पहले ही बिठा दिया। क्योंकि हम ज्यादातर फिजिकल सिम्टम्स को सिंस 90 मैंने कभी कंसिडर नहीं किया। ना थर्मल, ना एग्रीवेशन, ना एम्बुलेशन, कुछ भी नहीं। ना ग्रेड, ना जेबू, कुछ भी नहीं। तो 15 मिनट के बाद में पेशेंट ने बताया कि सर, मेरा नाउजिया बिल्कुल ठीक हो गया है, अब दिल कच्चा नहीं हुआ। मैंने उसके चेहरे की तरफ देख के बोला कि बेटा, आपके जो होंठ थे वो इतने रफ और बिल्कुल क्रैक्ड से लग रहे थे, इतनी ड्राइनेस थी, तो मेरे को लग रहा है कि ये कुछ कम लग रहे हैं देखने में। जस्ट आफ्टर 20-30 मिनट्स, और 20 मिनट्स, सॉरी। पेशेंट ने बोला कि यस सर। हाँ, ये इसमें तो जब मैं ऐसे हंसती थी, थोड़ा सा मुंह खोलती थी, तो पेन होता था, वो पेन भी नहीं है बिल्कुल। सो उसको फिर 15 मिनट के बाद मैंने बुलाया। उस पेशेंट ने बोला कि सर, आई एम फीलिंग मच बेटर, मच मच बेटर। तो उसको 3 दिन का, मैं अक्सर ही एक्यूट में ऐसे ही करता हूँ। बहुत ही ज्यादा एक्यूट है तो सेकंड डे बुलाते हैं, नहीं तो थर्ड डे बुलाते हैं। तो थर्ड डे वो पेशेंट अपने हस्बैंड के साथ आई और इस बार उसने अपने हस्बैंड को जाने के लिए भी नहीं बोला और बड़ा खुश नजर आ रही थी। शी वॉज परफेक्टली क्योर। और जो उसके जो टेस्ट थे वो उसने मेरे को दिखाए थे पहले। उसका टीएलसी लेवल बिल्कुल सही हुआ और प्लेटलेट्स लेवल बिल्कुल सही हुआ। इवन एचबी भी इंक्रीज हो गया, जो उस दिन काफी कम था। तो टेस्ट फोर्स हमारे पास होती है जनरली, वो इसकी जरूरत नहीं है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो इट्स ओके। तो मैंने उसमें क्या देखा, उस पेशेंट में मैंने क्या देखा? सबसे पहले पेशेंट ने आते ही बोला था कि सर, ये भी कोई जिंदगी है? मेरे तो जिंदगी से हार गई, बस लगता है कि मैं तो अपने जीवन को खत्म कर लूं। ये है सुसाइडल डिस्पोजिशन, डेस्पियर फ्लॉ। लगा कि अब मैं ठीक नहीं हो सकती, ये क्या जिंदगी है, इतनी मुश्किल में हूं और कोई घर का वातावरण भी खराब ही होगा। तभी वो कह रही थी कि कौन है मेरा, कौन मेरी परवाह करता है, मेरी तो किसी को जरूरत ही नहीं। डिल्यूजन alone being belongs to anyone। ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं जिनको अक्सर हम इग्नोर कर दिया करते थे। ये हमारे गुरुजी डॉक्टर सहगल साहब ने हमें सिखाया कि कैसे इन बातों को देख के हम पेशेंट को क्योर कर सकते हैं। और रियली इतना अच्छा मेथड देके होम्योपैथी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा परोपकार किया है उन्होंने। सैगल स्कूल की ये बहुत बड़ी देन है हमारे लिए। तो मैंने ये रूब्रिक को लिया, डिल्यूजन alone being belongs to anyone, suicidal disposition despair from, this was the रूटा 30 was given to the patient। और 3 दिन के बाद पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया। और जनरली 90% केसेस जो एक्यूट में, जैसे कोई डेंगू का हो, कोई चिकनगुनिया का हो, वायरल हो, मलेरिया हो, कुछ भी हो, एक ही डोज से क्लियर हो जाते हैं 90%। अगर कभी जरूरत पड़ती है तो 30 के बाद हम 6 यूज करते हैं। अगर 6 के बाद फिर लैप्स होता है देन वी गो फॉर 200।
और ऐसे ऐसे कोई एक आध कैसा ऐसा केस होता है जिसमें उससे भी आगे हायर नहीं जाना पड़ता है। तो दिस वाज द रूटा क्लियर द केस प्रॉपरली। सो ऐसा ही नेक्स्ट केस, मैं इसलिए केसेस डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि जो प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी है वो हम केसेस के द्वारा ही कर सकते हैं, और केसेस के द्वारा ही हम सीख सकते हैं कि कैसा हमने सुना, क्या पेशेंट ने हमें बताया और पेशेंट ने कैसे बताया। जनरली यही तो हमारी प्रॉपर्टी है, एक्सप्रेशंस की। हमारी जो बैंक है एक्सप्रेशन की, वो बड़ी होनी चाहिए। हम इतने एक्सप्रेशंस के जानकार होने चाहिए कि किसी भी स्थिति में कैसा भी एक्सप्रेशन हो, वो हमें हमसे छूटना नहीं चाहिए। अगर हम इतने परफेक्ट हो गए, इतने सक्षम हो गए कि हम पेशेंट के एक्सप्रेशन को समझने के समर्थ हो गए और उसको प्रॉपरली समझ पाए, तो फिर दिल्ली दूर नहीं। तो फिर हम उसको रैपिड रोपरे में कवर करना तो हमारा लैपटॉप ही कर देता है। बस हमारा काम तो एक्सप्रेशन को समझना है प्रॉपरली, और उसका प्रॉपर रूब्रिक क्या हो सकता है, दिस इज अवर जॉब ओनली। उसके बाद तो जी सारा काम कंप्यूटर साफ करेंगे। तो रूब्रिक आएंगे, रूब्रिक सेलेक्ट होगा, मेडिसिन सेलेक्ट होगी, मेडिसिन विल क्योर द पेशेंट। सो नेक्स्ट पेशेंट ये डेंगू में मेरे पास आया था, हमारे पास ही 25 किलोमीटर से दूर। उसके अटेंडेंट मेरे पास लेकर आए थे। उन्होंने बोला कि सर ये दवाई नहीं लेने चाहते, बस ये मना ही कर रहे हैं कि बस नहीं, नहीं लूंगा। बस आपके पास एक पेशेंट आया था हमारे पड़ोस से, वो पेशेंट ठीक हो गया था। वो इसके पास आया, उन्होंने बोल दिया कि मैं वहां से होम्योपैथिक मेडिसिन ली थी, तो आप भी ट्राई करके देख लो, मैं तो ठीक हो गया हूँ बिल्कुल। तो इसलिए पेशेंट आपके पास आया है। तो मैंने उनसे बात की, पूछा कि क्या बात है आपको। सर तंग आ गया, 20 दिन से मैं दवाइयां खा रहा हूँ। मैं तो पहले एडमिट भी होके देख लिया सिविल हॉस्पिटल में, 4 दिन में वहां पे भी रहा हूँ, कोई इतना फर्क नहीं पड़ा। इतने ग्लूकोज लगवाए, इतनी एंटीबायोटिक्स खाए और मेडिसिन खाई, तंग आ गया दवाइयां खा खा के। बल्कि मेरे को और भी दुखी कर दिया उन्होंने। पहले इतनी प्रॉब्लम नहीं थी जो मेडिसिन के बाद में और ज्यादा हो गई। पूरा शरीर बदन टूट रहा है मेरा। बस उसी के कहने पे मैं सोचा कि चलो मैं भी देख लेता हूँ, शायद मैं ठीक हो जाऊं। बस यही केस था। मैंने तो डॉक्टर साहब, इससे अच्छा तो मैं घर में ही बैठा रहता। ऐसे ही मैंने गलती की वहां पर जाके। तो अब इसके कहने पे मैं आपके पास आया। आप देखो कैसा करते हो। बस मैं एक ही बार दवाई लूंगा आपकी, उसके बाद नहीं आऊंगा। तो मैंने पेशेंट को दवाई दी, उनको बोला कि कोई बात नहीं, मैं अपनी कोशिश करता हूँ, आप देखिए जरा। उनको मेडिसिन दी और देख के को बाहर बैठाया, और 15 मिनट के बाद में, जैसे यूजली मैं ऐसा ही करता हूँ, तो पेशेंट को बुलाया, उनको पूछा कि क्या हाल है आपकी। तो उन्होंने बोला, रणजीत सिंह नाम था उनका। उन्होंने बोला रणजीत सिंह कैसे हो आप। डॉक्टर साहब अब कुछ इतना पता नहीं लगा, कोई खास नहीं लगा। ठीक है कोई बात नहीं। तो एक और एसएल की डोज डाली, तो नेक्स्ट 15 मिनट और बैठने के लिए बोला। पेशेंट का रश चल रहा था। तो 15 मिनट के बाद, फिर नेक्स्ट 15 मिनट के बाद पेशेंट को बुलाया। पेशेंट ने बोला कि सर अब जो बदन बहुत ज्यादा टूट रहा था उसमें तो राहत आ गई, और मेरा मुंह भी बहुत ही कड़वा था। तो उसने पहले नहीं बताया। अक्सर पेशेंट अपने मन की बात पहले बोल देते हैं,
और ज्यादातर टंग की बात थोड़ा सा बाद में बोलते हैं, और एक हम उनको कंसिडर भी कम ही करते हैं। कंसिडर इसलिए करते हैं कि वो हमारे लिए मील पत्थर होते हैं, कि अगर पेशेंट का मुंह कड़वा है, जब आपके पास आया, आफ्टर गिविंग द पोटेंसी टू द पेशेंट, you will notice the first symptom will be the, you can say, change of taste. Immediately after giving the medicine, within 5 to 10 minutes, पेशेंट को आप लगेगा कि मेरा मुंह का टेस्ट ठीक हो गया। तो उसने भी बताया कि सर मेरा मुंह बहुत ही कड़वा था, वो तो ठीक हो गया है। अब मैंने पानी पिया, पहले जब मैं पानी पीता था मेरा मुंह कड़ा होता था, मेरे को पानी कड़वा लगता था, अब वो नहीं लग रहा, तो बदलने में भी ठीक लग रहा है। तो उसके बाद मैंने पेशेंट को मेडिसिन दे के भेजा, और 3 दिन के बाद पेशेंट को फिर बुलाया। पेशेंट ने बोला कि सर आपने जो मेडिसिन मेरे को दी थी वो मेरे पास अभी थोड़ी सी बाकी है, वो लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। मैंने सोचा कि बिल्कुल लेनी चाहिए आपको, और 3 दिन की दवाई मैं और देता हूँ, उसके बाद में अगर कोई दिक्कत हो तो आ जाना। अब ये बातें जो मैं आपसे कर रहा हूँ, ये एक एजुकेटिव है। कैसे? पेशेंट ने बोला कि सर मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, अब दवाई की तो जरूरत ही नहीं लग रही। अरे भाई आपको तो नहीं, मेरे को तो है ना। तो फिर ऐसे ही उसको नहीं बोला मैंने, उसको जैसे ही बोला कि नहीं आप 3 दिन और खाइए फिर आप तो टेस्ट अपना करवा के लेकर आना, फिर मुझे पता चलेगा कि आप कितना ठीक हो गए। जी, उसने माना कि ये तो बात सही है। तो मैंने फिर तीसरे दिन बुलाया, पेशेंट वाज परफेक्टली ऑलराइट 6 दिन के बाद। तो मैंने क्या देखा पेशेंट में, आते ही पेशेंट ने बोला सर तंग आ गया हूं दवाइयां खा खा के, एनवाई, ये रूब्रिक है, एनवाई। बस मैंने गलती की वहां पे जा करके, उन्होंने मेरे को और भी विपदा में डाल दिया। मैं तो दुखी हो गया उनकी दवाइयों से। पहले मेरा इतना सिर दर्द नहीं होता था और दिल कच्चा भी नहीं होता था, कम से कम मैं खा तो लेता था ना, मेरा तो वो भी चला गया। बस मेरी बेवकूफी थी वहां पे जाना, इतना मेरे को उन्होंने तंग कर दिया। तो ये है रॉन्ग हैज डन, डिलूजन रॉन्ग डन ही हैज, डिलूजन रॉन्ग सफर्ड ही हैज। उनकी दवाइयों से मैं और मुश्किल में आ गया। ये बातें बड़ी कॉमन सी बातें हैं जो पेशेंट जनरली हमारे पास करते थे, लेकिन हम इग्नोर करते थे। ये मास्टर सहगल साहब ने हमें इन चीजों को देखने का एक विजन दिया है। इसी विजन के जरिए हम इन चीजों को देख पाए। और समय था कि फीवर के केसेस को देख के होम्योपैथी वाले डर जाते थे और रिजल्ट बहुत ही कम मिलता था, बहुत देर पहले। अब हमारे लिए ऐसा बात हो जाती है। तो हमने 1,000 प्लेटलेट में मैंने ठीक करने का एक अभ्यास किया है, और वो पेशेंट आज तक 100% ओके है। पहले हमने 4,000 पे ठीक किया था, 4,000 पे। मैंने बहुत बार डिस्कस किया है वेबिनारों में। विद दिस ग्रेट सक्सेस आई सैल्यूट डॉक्टर सहगल कि उन्होंने हमें इतना अच्छा मेथड दिया है। तो यही चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पेशेंट ने बोला ये चीजें सब, और एक ही लाइन में सब बोल दिया, कोई लंबी केस टेकिंग नहीं। क्योंकि उन दिनों में तो 200-200 पेशेंट की ओपीडी होती थी, तो इतना वक्त नहीं होता था, जस्ट 1 मिनट या 1.5 मिनट, बस इतना ही टाइम, 2 मिनट मैक्सिमम पेशेंट को मिलते थे। तो उसी में डिसाइड करना होता था कि क्या है। तो मैंने इस पेशेंट को लेक्सिस 30 दी थी, और लेक्सिस 30 के बाद कोई रेपिटेशन नहीं की, और 6 दिन के बाद उसका जो रिजल्ट था दैट वाज वेरी पॉजिटिव। तो पेशेंट ठीक हो गया था हमारा। और हमारे पास टाइम कितना है? 9 बजे था, ओके। एक और पेशेंट मेरे पास, इसको ये चिकनगुनिया में मेरे पास आया। बड़ा तेज तकलीफ थी इसको, बहुत ही। चिकनगुनिया में आप सबको पता है, आप ज्ञानवान हो, जितने भी हमारे कोलीग्स हैं उन सब लोगों ने तकरीबन सारे ही पेशेंट देखे हुए हैं। और
इतनी तकलीफ में पेशेंट आया। पहले भी मैंने लड़भा में भी ऐसे कुछ केस दिखाए थे, लेकिन ये और नए केस है। तो जिनको हम इमीडिएटली ठीक होता दिखा सकते हैं, पेशेंट को गोद में उठाकर लेके आते हैं, लेकिन पेशेंट चल के जाता है। इतना क्विक रिजल्ट है इसमें। सो पेशेंट जब आया अंदर मेरे पास, डॉक्टर साहब मुझे तो वही हो गया है। क्या वही हो गया है? ये जो सारे लोगों को हो रहा है आजकल, इसमें हाथ पैर सूज जाते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, चिकनगुनिया वगैरह, ऐसा ही। तो मैंने उनको पूछा कि आपने कोई टेस्ट करवाया? बोले टेस्ट उसका क्या है, सबको हो रहा है, मुझे भी वही है सर, ऐसा ही लोग तड़फ रहे हैं, मैं भी ऐसे ही तकलीफ में हूँ। तो मैंने उसको मेडिसिन दी। इतने से ही एक्सप्रेशन के ऊपर, पहले तो मैं भी कभी पूछता कि कितनी प्यास लगती है, कितनी देर में पीते हो, कब पीते हो, ठंडा पीते हो, गर्म पीते हो, क्या करते हो, ठंड लगती है, गर्मी लगती है, सब कुछ। ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर लेकिन इस नजरिए से भी हम पेशेंट को देख सकते हैं। तो पेशेंट ने सबसे पहले आके बोला, सर इसको आप, ये जो अंदर मेरे हुआ है ना, इसको आप खत्म कर दो। जो लोगों को हुआ है चिकनगुनिया के जो सेल है मेरे अंदर, पेशेंट अनपढ़ था, उसको वो सेल बोलता था इसको, इसकी इन्फेक्शन को, वायरस को, कि जो सेल बीमारी के है उसको बस खत्म कर दो। मेरे को तो वही हुआ है जो आप लोगों को होता है। बस इतनी सी बात, बस। और तो मैंने और पूछा और क्या बात है? बस सर चिंताएं तो बहुत रहती हैं, बहुत ही चिंता है, इतनी चिंता रहती है क्या बताऊं आपको, तभी तो मैं बीमार हुआ, अब चिंता की तो, बस इतनी सी बात थी। तो मैंने उनको ओपियम 30 दी। ओपियम 30 देने के बाद पेशेंट को, जैसे मैं रूटीन में ऐसे ही करता हूँ एक्यूट केसेस में, 10-15 मिनट में उसको पेशेंट को बुलाया, तो आते ही पेशेंट एकदम, कई कई पेशेंट ऐसा होता है कि उनका रिएक्शन बहुत जल्दी आता है, कई पेशेंट का रिएक्शन थोड़ा लेट आता है, लेकिन 15-20 मिनट में सभी का आ जाता है। तो पेशेंट ने बोला कि सर बहुत अच्छा लग रहा है अब तो। तो मेरे तो पाँव इतने सुन्न हो रखे थे, ऐसा लग रहा था कि मेरे पैर मेरे साथ ही नहीं है। जब मैं जूता भी पहनता था तो मेरे को जूते का पता ही नहीं चलता था। तो अब तो मैं आराम से आया हूं आपके पास। तो ऐसे ही 3 दिन 4 दिन के पेशेंट को बाद में मैंने जब बुलाया, तो पेशेंट एकदम ठीक हो गया, बिल्कुल परफेक्टली ऑलराइट था। ये मेरे कहने पे नहीं है, आप इन्हीं रूब्रिक्स को, इन्हीं एक्सप्रेशन के ऊपर जब सिलेक्ट करके मेडिसिन दोगे, इट इज श्योर यू विल गेट द रिजल्ट। ये हो ही नहीं सकता कि रिजल्ट ना मिले। यही तो सेगल पद्धति की एक सुपेरिटी है, कि अगर 10 लोग बैठे हैं, उनके फॉलोअर्स जैसे हम शिष्य हैं उनके, तो 10 की एक ही मेडिसिन आएगी। तो ऐसा ही मैंने उनको ओपियम 30 दी। कैसे? किल डिजायर टू, जो मेरे अंदर जरासीम है बीमारी के, बस उनको खत्म कर दूंगा। सुपरस्टिशियस, सर जो वो सबको हुआ है, क्या हो रहा है, वो जो भी हो रहा है मेरे को भी वही हुआ है, टेस्ट नहीं करवाया। सुपरस्टिशियस, चिंताएं इतनी घेरी रखती है, बस इसलिए तो हम तकलीफ में हैं। एलिमेंट्स फ्रॉम एंग्जाइटी, सिंपल सी बात, इतनी सी बात के ऊपर मैंने दिया। और मैंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा पेशेंट से, विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन। सिंपली जो वो बात कह रहा है, उसकी बात को प्रॉपर समझने के लिए उसको पूछना है, अगर जरूरत पड़े तो। अदरवाइज को पेशेंट अपना 1 मिनट में सब बता जाता है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अक्यूट में तो खास करके, क्योंकि पेशेंट तब सच बोलता है जब वो तकलीफ में होता है। क्रॉनिक में क्या होता है कि वो कुछ बातें अपने हिसाब से बोलता है, जो उसको इतनी बात गहराई में नहीं होती। लेकिन एक्यूट में तो उसको सुर्त होती ही नहीं है, सिंपली जो मुंह से निकलता है वही निकलता है, जो अंदर की बात होती है। इसलिए एक्यूट में इमीडिएट रिजल्ट मिलता है इसका। तो यही था हमारा ओपियम का केस। तो मेरे ख्याल में टाइम अभी 10 मिनट और बाकी हैं,
एक दो और केस करते हैं। तो एक नेक्स्ट केस, ये 44 ईयर्स के रणवीर सिंह इनका नाम था। ये मेरे पास डेंगू में आए थे। इनको काफी तकलीफ थी। बोले कि सर मेरे को 8-10 दिन से तकलीफ हो रही है, मेरे को बहुत ही दिक्कत आ रही है, मैं को कुछ खा ही नहीं सकता, ऐसा लग रहा है कि जैसे बंद ही हो गया सब कुछ, मैदे में कुछ खाए जा ही नहीं रहा। थोड़ा सा मुंह में कुछ डालने की कोशिश कर जाता हूँ, करता हूँ, पेशेंट एकदम पेट फूल जाता है। इतनी तकलीफ में हो, इतना वीक हो गया हो। अब कोई भी बच्चे भी बात नहीं करते हैं, शोर करते हैं तो चुभता है सिर में। कोई टेलीविजन चलता है, कोई पास में गाड़ी स्कूटर की आवाज आती है तो ना एकदम सिर के अंदर बसती है, चुभ जाती है, तकलीफ देती है मेरी। सर सब लोग अच्छा खा लेते हैं, मेरे को वो लगता है कि 2-2 3-3 पराठे ये लोग खाई जाते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं खा सकता। ये लगता कि मैं ऐसा क्यों नहीं हूं, मैं क्यों नहीं खा सकता। ये सब लोग इतना खाना अच्छे से खा रहे हैं, मेरे से तो 1% भी नहीं खाया जा रहा। मैंने पूछा और कुछ? सब बस शोर शराबा सब कुछ नहीं होना चाहिए, बस मैं तो शांति में पड़ रहा हूँ, इतना ही मुझे लगता है। तो ये पेशेंट का एक्सप्रेशन था। मैंने पेशेंट को मेडिसिन दी रूटीन में, जैसे 15 मिनट के बाद पेशेंट को पूछा, पेशेंट ने आपके इमीडिएट बताया कि सर वेल, तो मुझे अब सिर में वो इतनी तकलीफ थी ना। रूटीन मेरा क्लिनिक मेन रोड के ऊपर है, यहाँ पर अक्सर आवाजें आती रहती हैं, वाहन चलते हैं, स्कूटर, गाड़ियां, सब शोर शराबा चलता ही रहता है। बोला कि सर अब मेरे को इतना अंदर चुभ नहीं रहा, पहले तो मेरे को ऐसे लगता था कि जैसे चुभ रहा है अंदर। तो मेरा मन पहले से ठीक लग रहा है, और मैं बाहर आपके जो पानी का बोतल रखा हुआ है तो मैंने पानी भी पिया, मुझे ठीक लग रहा है। तो वैसे पेशेंट को थर्ड डे बुलाते हैं, तो 3 दिन के बाद में बुलाया तो पेशेंट वास तकरीबन ठीक हो गया था। ऐसे 5-6 दिन मार के फिर टेस्ट करवाने के लिए मैं अक्सर बोल देता हूँ, पहले हम किसी को टेस्ट के लिए बोलते ही नहीं, जो वो लेकर आते हैं बस उसी को कंसिडर करके उनको, पेशेंट को बोलते हैं कि नेक्स्ट टाइम आप करवा के ले आना। अगर आप परफेक्टली ठीक हो गए तो आने की भी जरूरत नहीं है, अपने आप देख लेना। अगर आपके टेस्ट सही हो, आप बेटर फील करते हो, तो बिल्कुल आने की जरूरत नहीं। तो ऐसा ही पेशेंट आया, मैं उन्होंने बोला कि सर मैं तो सिंपली आपको दिखाने के लिए आया, अदरवाइज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओके, तो मैंने उनको दिया था सल्फर 30। सल्फर 30 मैं अक्सर रूटीन में अक्यूट्स में बहुत ही ज्यादा यूज करता हूँ। जो मेडिसिन को पहले हम एक पॉलीक्रेस्ट के रूप में क्रोनिक के लिए जानते थे, तो मुझे एक अच्छा रास्ता मिला कि मैं इसको अक्यूट में बहुत ही ज्यादा यूज करता हूँ। और आजकल हम सल्फर पढ़ भी रहे हैं हमारे ग्रुप में, तो उसमें काफी अभी बड़ी है, उसमें और भी बातें करेंगे इसकी। तो उसको मैंने लिया था सेंसिटिव नॉइस टू। सेंसिटिव क्या होता है? दिस इज द सेंसिटिविटी टू नॉइस, एनवियस क्वालिटीज ऑफ अदर सेट। ये 2-2 3-3 पराठे खा जाते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं खा सकता, मुझे लगता है मैं क्यों नहीं खा सकता ऐसा। अरे ये लोग तो इतना खा जाते हैं। एनवियस क्वालिटीज ऑफ अदर सेट, वो कुछ भी हो सकता है। अगर पेशेंट अच्छे से चल के आ गया, उससे नहीं चला जाता तो उसको भी कह सकता है वो। ये तो हमने देखना है। एनबीएस की कोई भी क्वालिटी को पेशेंट एनबीएस में ले सकता है। फिर पेशेंट ने बोला कि सर ये शोर शराबा अच्छा नहीं लगता, बस मुझे तो शांति चाहिए। मेरे को लगता है कि मैं बस आराम से लेटा रहा हूँ, कोई कुछ भी मेरे को बुलाए ना, शोर शराबा नहीं होना चाहिए, शांति होना चाहिए, लॉन्गिंग रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी। तो यही सिम्टम मैंने लिए, रूब्रिक मैंने बनाए, और सल्फर 30 से ये पेशेंट हमारा ठीक हो गया।
तो और बहुत पेशेंट है, एक और पेशेंट मैं डिस्कस कर लेता हूँ, अभी टाइम हो गया है हमारा। तो ये एक लड़की मेरे पास आई चिकनगुनिया में, और तब मुझे चिकनगुनिया हमारे इलाके में चला ही था, और बहुत ही डरी हुई थी वो। कम से कम 20-25 दिन से वो तकलीफ में थी, और मेरे पास आके अपने हस्बैंड के साथ वो आई थी। सामने मेरे 2 चेयर्स हैं, ये चेयर इस बार अकेले पेशेंट के लिए है, सामने अटेंडेंट बैठते हैं। तो वो सामने वाली दोनों चेयर के ऊपर दोनों पेशेंट और उसके हस्बैंड बैठे। वो ऐसा अपने हस्बैंड के साथ थी, उसके कंधे के साथ का सहारा लेके बैठी हुई थी, ऐसा हाथ रख के उसके ऊपर। तो मैंने उनसे बोला कि क्या बात है, आपको क्या हो गया? सर क्या बताऊं, कुछ समझ में नहीं आ रही, क्या बताऊं आप, क्या बताऊं। कभी कुछ लगता है, कभी लगता है कि मुझे ये हो गया है, कभी लगता है मुझे ये है। अब मुझे समझ में नहीं आ रही कि मैं आपको बताऊं क्या। मैं तो दुखी हो गई हूँ, इतने दिन से 20 दिन हो गए मुझे, इतनी मैंने दवाइयां लेके एलोपैथी की देख ली। अब हमारे गांव से कोई पेशेंट आया था, उसने बताया कि मैं तो 4 दिन में ठीक हो गया। इसलिए मैं सोचा, मेरे हस्बैंड ने आप अ, मेरे को अपने आपके पास लेकर आए। डॉक्टर साहब मैं ठीक हो जाऊंगी। हाँ कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूँ, आप ठीक हो सकते हैं। सो यही पेशेंट के रूब्रिक थे, जो एक्सप्रेशन था पेशेंट का, उनको मैंने रूब्रिक में कन्वर्ट किया। तो मैंने पेशेंट को मेडिसिन दी, और जस्ट आफ्टर 15 मिनट्स आई कॉल द पेशेंट बैक। तो पेशेंट जब मेरे सामने आया तो ऐसे ठीक थे, अब वो चीज नहीं थी। तो जरूरत ही नहीं है पूछने की, जो पेशेंट पहले एक सहारा लेके बैठा है, वो अब उसकी जो नीड है वो कम हो गई है। सो इट वॉज इंडिकेटिंग दैट पेशेंट इज फीलिंग बेटर। तो मुझे लगा कि मेरा मरीज सही हो रहा है। ये मेरी अपनी जजमेंट थी। आई वॉज ऑब्जर्विंग दिस, यू कैन से, जेचर ऑफ द पेशेंट। तो मैंने पूछा कैसे लग रहा है आपको? सर स्लाइटली बेटर लग रहा है। पहले मेरे पाँव में इतना दर्द होता था, तो अब उतना नहीं हुआ। मैं चल के तो आई, लेकिन अब इनका सहारा नहीं लेना पड़ा मुझे। उसके अगले 15 मिनट के बाद में मैंने बुलाया, बोला कि पेशेंट कि मैं काफी ठीक फील कर रही हूँ। हंस के बात कर रही थी। तो 3 दिन के बाद पेशेंट को फिर वही, छह सॉरी, इस पेशेंट को मैंने 6 दिन के बाद बुलवाया था। तो 6 दिन के बाद पेशेंट ने मेरे को आके बोला कि सर आई एम परफेक्टली ऑल राइट। तो ये पेशेंट को मैंने प्लम्बम 30 दिया था। तो पेशेंट ने बोला कि मैं तो दुखी हो गई हूँ, 20 दिन हो गए मेरे को दवाई खाते खाते, एनवाई बोल रहा हूँ। ऐसे वो बैठे हुए थे। मैंने उसको, ये मैं आपसे बात फिलहाल बताना भूल गया, मैंने उसके ये पूछा था कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? सर और तो कोई है ही नहीं है, बस ये ही है अकेले, यही मेरे को समझते हैं, और इन्हीं से मैं बात करती हूँ। बस इन्हीं की कंपनी में मुझे अच्छा लगता है कि ये मुझे अच्छे से समझते हैं, मेरे मन की भाषा को बिना बोले ही समझ लेते हैं। वो कौन होता है जो आपके मन की बात को समझे, जो आपके दुख को महसूस करे? वो एक दोस्त होता है। वो जो हस्बैंड हो या वाइफ हो, माँ हो, बाप हो, बहन हो, भाई हो, कोई भी हो, हम उसको दोस्त की कैटेगरी में लेंगे, जो आपके मन की बात को, आपके दुख की अवस्था को समझ के आपकी केयर करता है। ही इज ए फ्रेंड। तो मैंने लिया कंपनी डिजायर फॉर फ्रेंड ऑफ ए। बस इनके पास बैठी थी मैं, तो यही मेरे पास बैठे रहे, तो मैं ठीक फील करती हूँ। मुझसे पूछा कि सर मैं ठीक हो सकती हूँ, बहुत दिन हुए, दुखी हो गई, लाइट डिजायर फॉर।
तो बोला कि क्या बताऊं सर, कुछ समझ में नहीं पड़ रहा। तो मैं सोचती हूँ, मेरी ऐसा लगता है, फिर लगता है कि इसको, और भी ये कुछ लगता है मेरे को, उस दिमाग में इतनी बातें चल रही हैं, पता ही नहीं चलता कि ये है या ये है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिमाग मेरा काम ही नहीं कर रहा। मैंने इसको लिया जेस्चर ग्रुपिंग एज ए फिल्म डार्क। तो इन रूब्रिक्स के आधार पर मैंने, और एक्सप्रेशन के आधार पे रूब्रिक बनाई, और रूब्रिक के आधार पर मैंने प्लम्बम 30 दिया। तो पेशेंट हमारा एकदम बिल्कुल परफेक्टली ओके हो गया। तो मेरे ख्याल में हमारा टाइम पूरा हो गया। आई हैव टू लीव नाउ। कोई भी क्वेश्चन होगा आपका, आप मेरे से पूछ सकते हो, जो मुझे आता होगा मैं बताने की कोशिश करूंगा। सर छोटी सी गुजारिश है, आपने बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत ही अच्छा बताते हैं। अगर ये हो जाया करे कि आपका कोई शागिर्द, वो मैं भी हो सकता हूँ, आपके केसेस पेश करने से पहले वो केसेस छोटे छोटे दो दो तीन तीन रूब्रिक होते हैं ना जी, वो रूब्रिक वो रिपर्टराइज करके ग्रुप में डाल दे तो बड़ा अच्छा इसलिए हो जाए कि जो नोविस है ना, बिगिनर्स हैं, उनको वो रूब्रिक्स का पता चल जाया करे सर। क्योंकि आप बताते हैं ना, तो जो सीनियर होम्योपैथ्स है ना जी, उनको तो फौरी पता चल जाता है, लेकिन अक्सरियत जो होती है वो आपको पता है कि 80-90% उनको पता नहीं चलता सर। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट एंड आई एम कोई रेडी बात नहीं, टू। डेफिनेटली आई विल पोस्ट ऑल द rubrics which I have discussed today in the, थैंक यू सर। हाँ जी, ओके। और कुछ? हाँ जी, Hello, sir. should I leave now? Yeah, it was very nice session and जी सर। very good learning. Thank you very much. आपका ओके बताने सर, का तरीका थैंक्स। बहुत अच्छा है. Thank you, sir. ओके, Thank you so much, sir, for such an insightful, crisp, and an easy to understand session. थैंक The यू। art, the art of observation is the key to homeopathy, and the way so easy you have made it for us to understand patients' language and reach to medicine is wonderful. Heartiest gratefulness to you, sir. Thank you so much. I would like to request the participants to put any query in the chat box if they have, so that sir can solve it. हेलो गुड इवनिंग सर। जी सर जैसा बोलिए। कि आप अभी बताया कि पेशेंट कह रही थी कि यही मुझे समझते हैं, ठीक है, तो अगर यहाँ पे पेशेंट कहे कि मुझे तो कोई समझता ही नहीं है, तो तो सर मैंने पहले यहाँ। भी बता दिया था पहले रूब्रिक में कि हमारा तो कोई है ही नहीं है। इसको हमने वो पहली मेडिसिन दी थी पहले वाले केस में, वो दूसरे रूब्रिक में आ जाएगा। फिर हमने जो पेशेंट ने हमें बोला है, उसी एक्सप्रेशन को समझ के हमने उसी के आधार पे रूब्रिक बताने हैं। हाँ, बशर्ते कि वो एक्सप्रेशन पेशेंट का प्रॉपर होके, और उसी एक्सप्रेशन को हम समझें प्रॉपर, वास्तव में पेशेंट कह क्या रहा है। तो पेशेंट ने तो जी यही सर। कहा ना कि बस यही मुझे समझते हैं, मैं यही, इनकी कंपनी कुछ मेरी अच्छी लगती है। वो फ्रेंड है, और क्या है, फ्रेंड कोई भी हो सकता है, माँ बहन भाई दोस्त मित्र सब, है ना। जी सर। जी, थैंक यू सर। यहाँ पे डिल्यूजन अलोंग बीइंग बिलोंग्स टू एनीवन शी डिड नॉट, ये समझ सकते नहीं हैं जो मैंने अभी आपसे कुछ भी, पूछा। बस अगर जो पेशेंट फील करता है, हमें तो बहुत कुछ पता है क्योंकि हमारी रेपर्टरी में हमारे मास्टर्स ने बहुत ही कुछ दिया है हमारे लिए। तो उसमें से तो कुछ ही बातें हमें आती हैं। अभी हमें क्या आता है, हमें भी तो कुछ ही दो चार बातें आती हैं, उन्हीं के आधार पर हम काम कर रहे हैं। वी आर नॉट मास्टर्स ऑफ दैट, बट वी आर लर्निंग, वी आर स्टूडेंट्स ऑफ द होम्योपैथी, स्पेशली ऑफ द माइंड टेक्निक। तो ये तो गुरु ही बता सकता है कि प्रॉपर क्या है। आई एम ए लिटिल स्टूडेंट ऑफ साइकिल स्कूल एंड लिटिल फॉलोअर ऑफ साइकिल सर। सो और कुछ पूछना हो? थैंक यू सर। जी, I hope everyone is clear with the whole session. The chat box is just full of gratefulness for sir.
So before concluding the session, I would like to express my gratefulness to all the dignitaries and participants for taking out your precious time and being patiently present here to learn so that we together can grow and grow homeopathy as well. So, next time we'll be again waiting for you all to meet on the same day, Saturday, 31st of January 2026, from 1 to 2 p.m., where we'll be having with us Dr. Vidhur Vittal, MD Pediatrics, with a wonderful topic, autism, how to crack the hidden language of spectrum and the role of constitutional semilimum. So now concluding this session, I would like to request Dr. Praveen ma'am, Finance Secretary ISP Punjab, to please end the session with her vote of thanks. Welcome, ma'am. Hello, everyone. Good evening, respected Mathalu sir, Sofa sir, principal sir, and all my senior colleagues and the junior and my friends. It was a really very nice session. I would like to thank Dr. Matharu sir first of all for sharing his knowledge with us, and secondly, Sofit sir for initiating such a beautiful thing for the homeopaths or at easy place. You can connect from anywhere. So thank you so much, all the dignitaries, all the friends, and the homeopaths. And I wish all best of luck. Thank you so much. Is it every Saturday at 1 p.m., ma'am? Hello, sir. Actually, this is not yet decided. It will be shared with the groups. Not yet decided, but the next session will be on Saturday, 1 to 2 p.m., 31st of January. Thank you. So, thank you, everyone. Have a beautiful weekend. Thank you so much. Namaste. Bye.